So welcome student. So this video is for organic chemistry GOC. Actually, I will not be available to do the classes of today. So I have decided to make a video on a very important topic, which is the acidic and basic strength of organic compounds. Actually, this topic is most important in our class 12 boards also, as well as entrances. You can find out the questions of acidic basic strength in every kind of book, considering as well as your you can also find it in your MS Chauhan as well as in Himanshu Pandey. So we are starting the video. Actually, the topic is so versatile and it is full of exceptions also. So I am making this video to help you to go through the organic chemistry fluently. Okay, so I think you should definitely see the video till the end. I will not make this video so much long that you will be bored. Actually, the topic is so critical. It is full of exceptions. So you should definitely see the video, and as well as you should also note down these important points that I will tell you. Okay. So let us start the video. Okay. So the topic is so today we will only discuss about the acidic strength. Okay. So let us start. So acidic strength, some rules you should know. Number one, not hydrogen. If the H plus, some rules. We will discuss all the rules, but we are starting from here. So these three rules, we will first explain them because most of the questions comes from this topic. We will discuss one by one. At first, those who do not know EDG and EWG, as this is the class of, as I am recording the class for class 11th and as well as JEE mains and advances. So 11th we have completed the electron donating group, electron withdrawing group, plus I effect, plus R effect, minus R effect, minus M effect, etc. But those who do not know about the plus I and plus R, I will give you a preliminary idea, but I will not go to the details. So you should remember, if you are not introduced with plus I and plus R and minus R and minus I, so this video is not for you, because this is so much important. Without these effects, I will not be available to explain this. Okay.
Now let us see. What is EWG? EWG are electron withdrawing ग्रुप्स. जो आपका इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करता है उसको आप इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप बोलते हैं. जैसे कि आपका हो गया नाइट्रो ग्रुप, जैसे कि हो गया CHO ग्रुप, जैसे COOH ग्रुप, जैसे कि आपका C डबल बॉन्ड CH3 ग्रुप. वी हैव सीन दिस फॉर क्लास 11th वी हैव कंप्लीटेड दिस. ओके, जैसे कि आपका CN ग्रुप एटसेट्रा. और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन सा है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है जैसे कि आपका एल्काइल ग्रुप हो गया. एल्काइल ग्रुप मींस जैसे कि आपका CH3 ग्रुप, जैसे कि C2H5, C3H7 एटसेट्रा, दिस ग्रुप्स. और OCH3 हो गया मिथॉक्सी, OC2H5 हो गया इथॉक्सी, OC3H7 हो गया प्रोपोक्सी एटसेट्रा. अच्छा, और दो चीज यहाँ पे लिखना पड़ेगा. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स का ऑर्थो, मेटा और पैरा पोजीशन में क्या क्या इफेक्ट होता है. इसमें होता है प्लस आई प्लस आर. मेटा पोजीशन में होता है ओनली प्लस आई. पैरा पोजीशन में होता है प्लस आई प्लस आर. इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का क्या होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक्चुअली. ऑर्थो, मेटा एंड पैरा में इसमें होता है माइनस आई माइनस आर. इसमें इलेक्ट्रॉन ए निकाल के लेगा माइनस आई माइनस आर. सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, अदरवाइज आपको ये चैप्टर में बहुत सारा तकलीफ होगा. So this is the important part that you should remember while doing the acidic strength. You should only remember these one and everything will be perfect. So let us go to the first example that was asked in your class 12th examination. Let us see. सिंपल एग्जांपल से शुरू करते हैं, ठीक है. तो पहला जो एग्जांपल है, बिटवीन मिथेनॉल एंड इथेनॉल which is more acidic and why. जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं CH3OH जो है और CH2OH है. जैसे कि आप जानते हैं जो ये एल्काइल ग्रुप है, ये जो है एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है. EDG इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है. इसका क्या इफेक्ट है? प्लस आई इफेक्ट. प्लस आई इफेक्ट के लिए क्या करता है? इलेक्ट्रॉन इसको यहाँ पे देते हैं, जो इट विल डोनेट द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द ऑक्सीजन एटम. यू शुड सी अगेन, एल्काइल ग्रुप इसको क्या ग्रुप बोलता है? मिथाइल ग्रुप बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पे CH3 है. तो इसका जो इफेक्ट है वो है आपका प्लस आई इफेक्ट. प्लस आई इफेक्ट के लिए क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन को रिपील करेगा. सो ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा. सो द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी increases on ऑक्सीजन एटम. इसमें क्या है? इथेनॉल के यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी एक आपका एल्काइल ग्रुप है. क्या ग्रुप है इसमें? यहाँ पे है आपका इथाइल ग्रुप. दिस इज ए इथाइल ग्रुप. इथाइल ग्रुप क्या है? एल्काइल ग्रुप. बड़ा वाला एल्काइल ग्रुप है. इसका भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर है. इसका भी प्लस आई इफेक्ट है. बट द प्लस आई इफेक्ट ऑफ इथाइल ग्रुप is very high comparing to the methyl group. So the electron density on the oxygen atom increases more than the oxygen in methanol. So H plus release is least favorable. So methanol is more acidic.
this is the fundamental question. This is the fundamental question. आप यहाँ पे देखोगे कि बोथ जो अल्कोहल है वो अल्कोहल आपका एलिफेटिक अल्कोहल है। एलिफेटिक अल्कोहल में क्या है, इसमें दोनों में एक एल्काइल ग्रुप है। आपका जो एल्काइल ग्रुप का साइज देखिए यहाँ पे, मिथाइल ग्रुप का जो साइज है इसमें एक ही कार्बन एटम है, और आपका इथाइल ग्रुप का जो साइज है इसमें 2 कार्बन एटम है। तो आप देखेंगे हम लोगों ने पढ़ा था क्लास 11 का जो हम लोगों ने जीओसी स्टार्ट किया है क्लास में, इसमें हम लोगों ने देखा है कि जितना बड़ा एल्काइल ग्रुप होगा उसका प्लास आई इफेक्ट और इलेक्ट्रॉन को पुश करने की क्षमता जो है वो ज्यादा होगी। तो आप यहाँ पे देखेंगे इथाइल ग्रुप का जो पावर है इलेक्ट्रॉन डोनेशन का वो ज्यादा है। तो इथाइल क्या करता है, ऑक्सीजन के ऊपर ज्यादा इलेक्ट्रॉन पुश करता है। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन पुश करने से क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन एटम है इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाता है। इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी इंक्रीज होने के समय क्या होता है, जो हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड जो है ये स्ट्रॉन्ग हो जाता है। द बॉन्ड बिकम्स स्ट्रॉन्गर बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इन केस ऑफ इथेनॉल, दैट्स व्हाई H+ रिलीज इज लेस फेवरेबल। जिसके ऑक्सीजन के ऊपर ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा ना, जिसका ऑक्सीजन के ऊपर ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो हाइड्रोजन को वो पकड़ लेगा, वो हाइड्रोजन रिलीज नहीं कर सकता यहाँ से। दैट्स व्हाई इथेनॉल इज लेस एसिडिक, मिथेनॉल इज मोर एसिडिक। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ इसको इंग्लिश में। एज ए मिथेनॉल हैज a small alkyl group, that is the methyl group present with the O oxygen atom, and due to its plus I effect the electron density increases on the oxygen atom. But in case of ethanol, due to the plus I effect of the higher larger alkyl group, the oxygen electron density on the oxygen atom increases as it increases in the methanol. So ऑक्सीजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ज्यादा हो जाएगा इन केस ऑफ इथेनॉल। इसके लिए ये जो हाइड्रोजन है वो इजीली निकल के नहीं आ सकता है, इसके लिए इसका एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो कम है। सो ये हो गया हमारा पहला एग्जांपल। उसके बाद देखेंगे दूसरा एग्जांपल जो एनसीईआरटी में है। हमारे एनसीईआरटी के एग्जांपल देखेंगे। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में है ये क्वेश्चन। इसको अरेंज करने के लिए बोला है एसिडिक स्ट्रेंथ के डिक्रीजिंग ऑर्डर में। आप देखेंगे यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इसको पहले। ये है इसका ऑर्डर, कैसे लिखा मैंने पहले आप देखिए। ये जो इस जो कार्बन आप यहाँ पे देख रहे हैं CH2 ग्रुप, इसके साथ में एक फ्लोरीन यहाँ पे ऐड किया हुआ है। फ्लोरीन है यहाँ पे, आप जानते हैं फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो सबसे ज्यादा है हमारे पीरियोडिक टेबल में। सो फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्रेजेंट इन आवर होल पीरियोडिक टेबल। सो फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का जो पावर है, ये जो आपको इलेक्ट्रॉन यहाँ पे विड्रॉ करेगा, दिस इज द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये भी आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे विड्रॉ करेगा, Cl भी करेगा, आयोडीन भी करेगा, लेकिन ये नहीं करेगा। ये इसका क्या है, ये एल्काइल ग्रुप है। एल्काइल ग्रुप का क्या इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट होता है। तो आप देखेंगे फ्लोरीन जो है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे विड्रॉ करेगा। तो करने से क्या होता है, देखेंगे यहाँ पे स्ट्रक्चर को। देखिए ये जो फ्लोरीन है ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, तो ये पूरा चेन के अंदर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होगा। सो ये जो ऑक्सीजन एटम है इसके ऊपर आपका जो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी था वो यहाँ पे घट जाएगा। घटने से क्या होगा, ये जो बॉन्ड है दिस बॉन्ड विल बिकम वीकर एंड H+ विल यहाँ से आराम से यहाँ से निकल जाएगा। सो फ्लोरीन जो है वो फैसिलिटेट करता है, क्या फैसिलिटेट करता है, H+ के रिलीज के लिए। अब क्लोरीन देखेंगे, क्लोरीन भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, लेकिन इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो फ्लोरीन से कम है। तो ये बहुत कम इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। तो ये जो बॉन्ड है वो यहाँ पे वीक होगा, लेकिन फ्लोरीन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। फ्लोरीन का ये जो बॉन्ड है इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा यह बॉन्ड, इसलिए यहाँ पे H+ जो है वो धीरे से रिलीज होगा, यहाँ पे है जल्दी से रिलीज होगा। तो इसके बाद आता है आयोडीन।
और आप देखेंगे CH3COOH जो है, इसमें क्या होता है, अब स्ट्रक्चर यहाँ पे देखिए, अभी देखिए यहाँ पे जो मिथाइल ग्रुप है इसका क्या इफेक्ट है, यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट है। प्लस आई इफेक्ट के लिए क्या करेगा, ये आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, धक्का देगा इसको, इलेक्ट्रॉन को धक्का देने से क्या होगा, ऑक्सीजन के ऊपर इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो बढ़ जाएगा। बढ़ने से क्या होता है, बढ़ने से होता है ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड हो जाएगा आपका स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग होने से H+ यहाँ से नहीं निकलेगा। सो दिस इज द वे। सो मैं फिर से बता रहा हूँ। सो ये जो क्वेश्चन है ये हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब देखेंगे इसमें हम लोग, उसके बाद भी और एग्जाम्पल देखेंगे। सो यहाँ पे देखिए, ये जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ये क्लोरीन से ज्यादा है। जो फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपने अपनी ओर खींचेगा, इसको करने से क्या होगा, पूरा का पूरा चेन में इलेक्ट्रॉन का पुल होगा। होने से क्या होता है, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के ऊपर जो चार्ज का डेंसिटी और इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी है वो यहाँ पे घट जाएगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटने से क्या होता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो वीकर हो जाएगा। सो H+ विल बी रिलीज्ड इजीली। अब मिथाइल ग्रुप को देखिए, 4 नंबर ऑप्शन को देखिए, CH3COOH को। इसमें क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये जो ग्रुप है EDG, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसका क्या इफेक्ट है, इसका प्लासा इफेक्ट है। प्लासा इफेक्ट से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा। करने से क्या होगा, ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन का जो डेंसिटी है वो बढ़ जाएगा। बढ़ने से क्या होगा, ऑक्सीजन का हाइड्रोजन का बॉन्ड जो है वो हो जाएगा स्ट्रॉन्ग। अभी H+ यहाँ से नहीं निकलेगा। ठीक है, सो दिस इज द वे। सो ये गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। अभी देखेंगे और एक सिंपल एग्जांपल। अभी हम लोग सिंपल एग्जांपल देख रहे हैं। अभी देखेंगे इन चारों में क्या है। जो यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूं उसके बाद एक्सप्लेन करता हूं। यहाँ पे जो पहला वाला है 1, जिसके साथ में 3 फ्लोरीन है, आपको पता ही चल जाएगा। यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा कि आंसर मैंने क्यों ऐसा लिखा है, क्योंकि यहाँ पे 3 फ्लोरीन है, वो तीनों यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेंगे। विड्रॉ करने से क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारा पुल होगा इलेक्ट्रॉन का, एंड ऑक्सीजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बहुत ही घट जाएगा, और H+ जो है इजीली रिलीज हो जाएगा। तो पहला वाला सबसे ज्यादा एसिडिक है। अभी दूसरा वाला का क्या है, यहाँ पे 2 फ्लोरीन है, आप लोग यहाँ पे देख ही रहे होंगे, 2 फ्लोरीन है, और इसमें होगा COOH। तो क्या होगा, यहाँ पे जो पुल होगा वो कम होगा, किससे, पहले वाले से, क्योंकि पहले वाले में 3 फ्लोरीन है। तो नंबर ऑफ फ्लोरीन हियर डिटरमाइंस द एसिडिक स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, पहले आएगा 1, उसके बाद आएगा 2, उसके बाद आएगा 3, उसके बाद आएगा 4। सो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ट्राइफ्लोरो मिथाइल, सॉरी, ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड, डाइफ्लोरो एसिटिक एसिड, फ्लोरो एसिटिक एसिड एंड एसिटिक एसिड, इन चारों में हम लोग यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे। तो जितना ज्यादा फ्लोरीन का यहाँ पे नंबर बढ़ेगा अल्फा कार्बन में, उतना ही इसका एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे नंबर ऑफ फ्लोरीन विल डिटरमाइन द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंपाउंड। ये हो गया हमारा तीसरा एग्जांपल। अभी देखेंगे हम नंबर 4 एग्जांपल जो है, ये अभी धीरे धीरे इसका लेवल जो है ये अपग्रेड हो रहा है। ठीक है, नंबर 4 इसका लेवल जो है धीरे धीरे अपग्रेड हो रहा है। अभी देखेंगे हम लोग एक दूसरा वाला क्वेश्चन। अभी किसी ने आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया, इन दोनों में कौन सा वाला ज्यादा एसिडिक है। तो मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, उसको आप लिख लीजिएगा। उसके बाद स्टेटमेंट देख के आपको पता चलेगा, मैं समझाऊंगा उसके बाद, पहले आप लिख लीजिए। इन केस ऑफ ethanol, it has a alkyl group which has a plus I effect, for which it donates electron, and the electron density on the oxygen atom
increases and acidic strength is less. ये हो गया आपका इथेनॉल का। अभी देख लेंगे फेनॉल का क्या है। इन फेनॉल आप लोगों ने रेजोनेंस देखा ही होगा, हम लोगों ने रेजोनेंस पढ़ा है। इन फेनॉल द लोन पेयर ऑफ द ऑक्सीजन एटम undergo resonance in the ring, so the more acidic। ये है आपका एक्चुअल जो है। अभी आपका लेवल यहाँ पे अपग्रेड होना शुरू हो गया है। अभी देखेंगे आप यहाँ पे क्या होता है। धीरे धीरे जो लेवल है वो अपग्रेड होगा। अभी देखिए आप यहाँ पे आपको पता ही चल रहा होगा, जैसे कि हम लोग रेजोनेंस जानते हैं। रेजोनेंस में क्या होता है, फेनॉल का जो रेजोनेंस है, मैं यहाँ पे आपको लिख के यहाँ पे दिखाता हूँ, जो आपके एनसीईआरटी में भी है। ओके, तो आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे फेनॉल का जो रेजोनेंस है यहाँ पे, फॉर दिस रेजोनेंस आपके ऑक्सीजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी था वो घट गया। जैसे कि आप 2 नंबर कैनोनिकल फॉर्म में देखेंगे तो देखेंगे उसके ऑक्सीजन के ऊपर एक प्लस चार्ज है। जैसे कि आपको पता चल जाएगा ये प्लस चार्ज होने से ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड जो है वो इजीली यहाँ पे टूट जाएगा, तो H+ जो है वो इजीली रिमूव हो जाएगा। सो हम लोग ये देख रहे हैं कि आपके फेनॉल में जो है, फेनॉल में यहाँ पे रेजोनेंस के लिए ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट रहा है। ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट रहा है, उसका मतलब क्या है, वो जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड है वो अभी यहाँ पे वीक हो गया। अभी H+ जो है वो इजीली यहाँ पे निकल सकता है। सो आप इथेनॉल का देखिए, इथेनॉल में क्या है, ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक एल्काइल ग्रुप है। ये एल्काइल ग्रुप का क्या इफेक्ट है, प्लासा इफेक्ट है, हम लोगों ने पहले भी देखा है। इसका ईडीजी है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। सो इसको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, करने से ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। इंक्रीज करने से क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा। आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए, ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकल बढ़ने से उसका जो हाइड्रोजन रिलीज का क्षमता है वो घट जाएगा। ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने से और इसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। हायर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द ऑक्सीजन एटॉम, इसका जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगा। लोअर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द ऑक्सीजन एटॉम, हायर विल बी द एसिडिक स्ट्रेंथ। जैसे कि आपके फेनॉल में हुआ, फेनॉल में क्या हुआ, इसका लोन पेयर रेजोनेंस में चला गया तो इसके ऊपर ऑक्सीजन का डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी यहाँ पे घट गया है। घटने से क्या होता है, जो H+ सीरीज जो है वो ज्यादा फेवरेबल होता है। ये हो गया हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन। अभी हम लोग देखेंगे चैप्टर एक्शन नंबर एग्जांपल नंबर 5। ये है बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। ये भी सिंपल एग्जांपल है, नीट का क्वेश्चन है। ये है क्वेश्चन, इसमें आपको समझना पड़ेगा। अभी यहाँ पे सब आ जाएगा, प्लस आर माइनस आर सब कुछ।
अभी देखेंगे, अच्छी तरीके से देखिए, इसका जो ए वाला कंपाउंड है, ए कंपाउंड में पहले आप देखिए ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन किसको बोलते हैं। मुझे लगता है मैंने इसको कवर किया है हमारे क्लास में। जो स्टूडेंट जेई मेंस और एडवांस के लिए मेरे यहाँ पे करते हैं काम, क्लास करते हैं, सो उसको उन लोगों को शायद उन माने they should not, they some of them may not know, okay, some of them may not know this is the ortho position, this is the meta position, this is the para position, this is the meta position, this is the ortho position. अभी आप देखेंगे इस कंपाउंड ए में there is a nitro group which is an electron withdrawing group. इसका क्या क्या इफेक्ट है? इसका माइनस आई इफेक्ट भी है, माइनस आर इफेक्ट भी है। ड्यू टू both the effects, it attracts electron. इसका क्या मतलब है? यह मतलब यह है, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को अपने ओर, इसको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खींचेगा। माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट और माइनस आर जो है वो बहुत बड़ा है, इफेक्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है। माइनस आई जो है वो वीक इफेक्ट है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए आप, नाइट्रो जो ग्रुप है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। सो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है अपने ओर। खींचने से क्या होता है, द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द ऑक्सीजन एटम विल डेफिनेटली डिक्रीज। ऑक्सीजन एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगा। सो द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द ऑक्सीजन एटम डिक्रीजेस। हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ यहाँ पे बढ़ेगा। सिमिलरली आप सी में देखिए, सी का जो स्ट्रक्चर है आप देखेंगे यहाँ पे, यहाँ पे देखिए ये जो ग्रुप है, इसका ग्रुप है ईडीजी। इसका क्या इफेक्ट है पैरा पोजीशन में? ऑर्थो मेटा अनपैरा पोजीशन में क्या है, प्लस आई एज वेल एज प्लस आर। ये जो ग्रुप है CH3, ड्यू टू इट्स प्लस आई एंड प्लस आर गिव्स इलेक्ट्रॉन, क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है ये। सो द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी on the oxygen atom increases and strength is low, acidic strength is low. I am pausing the video for some time. I am going to have some water, okay? So आप लोग यहाँ पे देखेंगे जो ये जो सी नंबर का कंपाउंड है, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ लो है। मैं यहाँ पे आपको सब कुछ यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ, तो आप ये इसको नोट डाउन जरूर कीजिएगा, ओके? ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी। क्योंकि आपका नाइट्रो ग्रुप का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर के लिए वो इसको इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे विड्रॉ करेगा, उसके इसीलिए यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को जो है वो घट जाएगा और H प्लस रिलीज जो है वो यहाँ पे ज्यादा होगा। तो आपको यहाँ पे ये चीज याद रखना है। उसके बाद देखिए, ये एग्जांपल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल नंबर 6 है शायद। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। देखिए ये जो है, ए में क्या है,
in a compound, electron withdrawing group, that is the nitro group, present in the para position. So it has both minus I and minus R effect. For both these effects, it will withdraw electron, and the electron density on the oxygen atom decreases. So इसका जो H प्लस है, इसका रिलीज फेवरेबल. ओके, अभी कंपाउंड नंबर बी में देखिए. बी में जो है कंपाउंड, उसके भी बी का जो कंपाउंड है, इसके अंदर भी देखिए मेटा पोजीशन में एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, सेम ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप इज प्रेजेंट. इसके लिए क्या होता है, मेटा पोजीशन में ओनली माइनस आई इफेक्ट होता है, इसमें नो माइनस आर नहीं होता है. इसलिए क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन, ये जो नाइट्रो ग्रुप है, इट विल विड्रॉ a less amount of electron. सो क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है, वो इतना नहीं घटेगा जितना के पहले ए कंपाउंड में हुआ है. सो इसीलिए क्या होगा, जो फर्स्ट वाला है ए इज मोर एसिडिक देन योर बी. सो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है. पैरानाइट्रोफेनॉल एंड मेटानाइट्रोफेनॉल में एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या है, आप यहाँ पे देखेंगे. ये जो नाइट्रो ग्रुप पैरा पोजीशन में होता है, इसके लिए इसके ऊपर दो इफेक्ट होता है, एक माइनस आई और दूसरा है माइनस आर. अगर मेटा पोजीशन में होगा, इसके लिए इसके ऊपर सिर्फ एक ही इफेक्ट होगा, जो क्या है माइनस आई इफेक्ट. माइनस आई जो है वो माइनस आर के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा है और बहुत ही इनसिग्निफिकेंट है. माइनस आर इज स्ट्रॉन्गर, दैट्स व्हाई ए कंपाउंड जो है इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, बी कंपाउंड का एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा. उसके बाद हम लोग एग्जांपल नंबर 7 पे चलते हैं. धीरे धीरे इसका लेवल अपग्रेड हो रहा है. एग्जांपल नंबर 7 में देखिए, आपको पता ही चल रहेगा जे यहाँ पे ऑर्थो मेटा पैरा मेटा ऑर्थो. यहाँ पे देखिए आप, कंपाउंड ए जो है, इसके अंदर 3 NO2 ग्रुप्स आर इन O and P position, so they will attract electron due to minus I and minus R both. 3 nitro groups are in the ortho and para position, so they will attract the electrons due to minus I and minus R both. So minus I and minus R both effect के लिए वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा. So the electron density
on the oxygen atom is very less. So acidic strength is very high. इसका नेम जो है वो है पिक्रिक एसिड. इसका आईयूपीसी है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल. तो ये है हमारा पहला कंपाउंड का एक्सप्लेनेशन. दूसरा कंपाउंड जो है बी में, अभी बी में देखिए क्या होता है. कंपाउंड बी में 2 NO2 ग्रुप्स जो कि आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है आर इन O and P पोजीशन. सो दोनों के लिए क्या होगा, इसमें -I एंड -R बोथ होगा, दोनों ही है. सो द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द oxygen atom decreases, but not as much as it decrease in compound A, because in compound A 3 nitro groups are present. गुड. नंबर 3 में क्या है, अभी सी नंबर में देखेंगे. इन कंपाउंड सी द नाइट्रो ग्रुप्स आर इन मेटा पोजिशंस. So their -I is only present, -R is not present. -I is a weak effect. So electron density does not decrease in a greater extent. So conclusion क्या निकल के आया यहाँ पे? The conclusion is A is more acidic than B than C. तो यहाँ पे जो होगा पिक्रिक एसिड is more acidic than B than C. मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. आप पहले वाले में देखिए, यहाँ पे ऑर्थो मेटा और पैरा में आपका 3 नाइट्रो ग्रुप्स है. नाइट्रो ग्रुप्स का 2 इफेक्ट है, -I और -R. हम लोगों ने पढ़ा है कि ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे -I और -R दोनों ही रहता है. मेटा पोजीशन पे सिर्फ -I रहेगा. तो हम लोगों ने देखा है कि आपका जो ये नाइट्रो ग्रुप्स है, ये तीनों नाइट्रो ग्रुप्स ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं अपनी ओर, और यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो बहुत घट जाता है. घटने से क्या होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है ये वीकर हो जाता है. H+ रिलीज इज मोर फेवरेबल. बट आप यहाँ पे दूसरे वाले में देखेंगे, नाइट्रो ग्रुप जो है 2 नाइट्रो ग्रुप्स है, वो भी ऑर्थो पैरा पोजीशन पे है, उसका भी -I -R बोथ है. लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे 2 नाइट्रो ग्रुप्स है और पहले वाले में 3 नाइट्रो ग्रुप्स है. तो पहले वाले में आपका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा. और लास्ट का जो है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें क्या है, 2 नाइट्रो ग्रुप है, ये आपका प्रेजेंट है आपके मेटा पोजीशन पे. मेटा पोजीशन के आपका मेटा पोजीशन पे आपका क्या होता है, सिर्फ -I इफेक्ट होता है, R इफेक्ट नहीं होता है, रेजोनेंस का कोई इफेक्ट नहीं होता. तो ये जो इलेक्ट्रॉन खींचता है बहुत ही वेरी 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 लेस amount of electron is attracted by the nitro groups due to its -I effect. That's why यहाँ पे जो ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी है वो घटता नहीं है ज्यादा, इसीलिए H+ रिलीज जो है वो लेस फेवरेबल होता है. इसीलिए आपका देखेंगे A नंबर इज मोर एसिडिक देन B नंबर देन इज C नंबर. ओके, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे होता है हमारा एग्जांपल नंबर 8.
ये देखिए, ये जो है कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है। क्या कंफ्यूजन होता है? हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि फेनॉल के पैरा पोजीशन पे नाइट्रो होने से उसका एसिडिक स्ट्रेंथ यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है, लेकिन प्रॉब्लम जो है, प्रॉब्लम आपको यहाँ पे ये है, बेंजोइक एसिड is more acidic than para nitrophenol because it contains a COOH group. Because it contains a COOH group, you should remember this one. It contains a COOH group. COOH group का जो H plus रिलीज करने का जो टेंडेंसी होता है वो आपके नाइट्रो ग्रुप से, सॉरी फेनॉल से बहुत ही ज्यादा होता है. सो nitro substituted phenols will not be comparable with the COOH due to its very high H plus releasing nature. Okay, so this is the next one. Number 9 जो हम लोग देखेंगे, इसमें भी हम लोग यहाँ पे ए बी सी देते हैं. जो ऑर्डर है वो है ए इज ग्रेटर देन सी इज ग्रेटर देन बी. अभी ये तो बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, लेकिन कुछ लोग को यहाँ पे तकलीफ होता है, क्योंकि देखिए ये जो है ए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है EWG, इसका यहाँ पे माइनस आई है, यहाँ पे माइनस आर है, बोथ इफेक्ट्स आर प्रेजेंट. इसका जो यहाँ पे है इसमें सिर्फ माइनस आई है, नो माइनस आर है. इसमें सिर्फ माइनस आई भी है, माइनस आर भी है. तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं बी में सिर्फ माइनस आई है तो इलेक्ट्रॉन कम खींचेगा, तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे लास्ट में आएगा. अभी देखिए ए और सी में क्या होता है. ए और सी में माइनस आर जो है वो कांस्टेंट है. यहाँ पे जो माइनस आर है वो सब इक्वल है, इस आर में इक्वालिटी है. लेकिन जो डिस्टेंस है यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप का COOH ग्रुप से, यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो लेस होता है. यहाँ पे डिस्टेंस जो है ये है हाई, और माइनस आई इफेक्ट जो है वो डिस्टेंस के साथ में बहुत जल्दी घट जाता है. तो यहाँ पे जो माइनस आई इफेक्ट है, द माइनस आई इफेक्ट ऑफ द नाइट्रो ग्रुप is very high in compound 1 comparing to that of compound C, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है. कंपाउंड सी में देखिए नाइट्रो ग्रुप का डिस्टेंस जो है वो COOH से ज्यादा है, और कंपाउंड ए में देखिए नाइट्रो ग्रुप का जो डिस्टेंस है वो बहुत ही कम है. सो इसीलिए जो ए का जो कंपाउंड है इसके ऊपर आपका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा. सो आप लोग को इसमें याद रखना है जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस के साथ हमारा जो इफेक्ट है नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट वो यहाँ पे घट जाएगा. ठीक है, सो यहाँ पे आ जाएगा ए, उसके बाद सी, उसके बाद बी. इसको एक ऑर्थो इफेक्ट भी बोल सकते हैं, ऑर्थो इफेक्ट. Okay, so this is the para-aminobenzoic acid which does not follow the ortho effect. मैं एक बार फिर से आपको यहाँ पे इसको क्लियर कर देता हूँ.
ऑर्थो नाइट्रोबेंजोइक एसिड में नाइट्रो ग्रुप का माइनस आई इफेक्ट भी है, माइनस आर इफेक्ट भी है। उसके बाद पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड में माइनस आई इफेक्ट भी है, माइनस आर इफेक्ट भी है। माइनस आर जो इफेक्ट है वो दोनों के बीच में इक्वल हो जाता है, लेकिन माइनस आई जो इफेक्ट है वो डिस्टेंस के साथ में घट जाता है। जो आपका पहला वाला कंपाउंड है नाइट्रो ग्रुप COOH के पास में है, इसके लिए इसका माइनस आई माइनस आर बहुत ही ज्यादा, माइनस आई ज्यादा होता है, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी से, इसीलिए आपका पहला जो कंपाउंड है उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, बिकॉज इट विल रिलीज द H+ इजीली एज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस इन केस ऑफ द फर्स्ट वन। ओके, इसको ऑर्थो इफेक्ट भी बोल सकते हैं। द ऑर्थो इफेक्ट इज सीन इन द बेंजोइक एसिड। The ortho substituted benzoic acid is more acidic than its meta and para isomer except para amino benzoic acid, because para amino benzoic acid में एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे निकल के आ जाएगा, उसके लिए ये जो ऑर्थो इफेक्ट है उसका यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो हम लोग 10 नंबर का एग्जांपल देखेंगे वो लास्ट एग्जांपल होगा हमारा, वो ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। इसको बोलते हैं आपका SIR इफेक्ट। इसमें आप देखेंगे हम लोगों का नाइट्रो ग्रुप का जो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नाइट्रो ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नाइट्रो ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नाइट्रो ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नाइट्रो ग्रुप है, मेटा पोजीशन पे है। ठीक है, इन लोगों का कंपैरिजन मुझे नहीं चाहिए। ये देखिए ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, डिफरेंस कहाँ पे है कंपाउंड का, यहाँ पे डिफरेंस है ना, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो हम लोग जानते हैं नाइट्रो ग्रुप का जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर है वो साइनाइड से बहुत 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 ज्यादा है। सो हम लोग जानते हैं नाइट्रो ग्रुप का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर साइनाइड से बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी आपको लग रहा होगा कि ए नंबर ज्यादा एसिडिक है, लेकिन फिर भी इसका बी जो है, बी इज मोर एसिडिक देन ए। ये मतलब क्या है, मतलब है यहाँ पे ये लिख देता हूं मैं, द 3 नाइट्रो ग्रुप्स are in the consecutive positions in the positions due to the repulsion of the nitro groups in the meta position comma the nitro group in para position goes out of the resonance plane। इसके लिए क्या होता है, अभी इसका माइनस आर जो इफेक्ट है वो खत्म हो जाएगा। अभी देखिए बहुत ही क्लासिकल एग्जांपल है, यहाँ पे देखिए आप लोग मान के लीजिए 3 बॉल्स आर देयर। अब 3 बॉल लेते हैं, 3 बाल्की बॉल लेते हैं, बड़ा बॉल। अभी इसको आप लोग साइड के जो 2 बॉल है, इफ यू इसको प्रेस करोगे तो ये जो बीच का जो बॉल है जो वो प्लेन से ऊपर या नीचे चला जाएगा। सो ऐसे ही यहाँ पे होता है, 3 नाइट्रो ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन द कॉन्जिक्यूटिव पोजिशंस, so the due to the repulsion of the nitro groups in the meta position, आप इसको रिपल्शन करेंगे तो बीच का जो आपका नाइट्रो ग्रुप है, दिस विल गो आउट ऑफ द प्लेन और बिलो द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन, अप ऑफ द प्लेन और बिलो द प्लेन। सो रेजोनेंस का एक क्राइटेरिया है, रेजोनेंस का क्राइटेरिया जो है वो क्राइटेरिया है आप प्लेन के अंदर होंगे तभी आपको रेजोनेंस हो सकता है। अभी देखेंगे यहाँ पे जो नाइट्रो ग्रुप है, ये नाइट्रो ग्रुप जो है वो प्लेन से ऊपर चला गया। प्लेन से ऊपर चला जाने से क्या होता है, इसका माइनस आर इफेक्ट खत्म हो जाता है। माइनस आई रहता है लेकिन माइनस आर इफेक्ट कंप्लीटली खत्म हो जाता है। अब दूसरी तरफ देखिए बी नंबर कंपाउंड में, बी नंबर कंपाउंड में क्या है, ये जो 2 नाइट्रो ग्रुप के बीच में एक साइनाइड ग्रुप है। साइनाइड इज ए स्लिम एंड ट्रिम ग्रुप, ये इसको रिपल्शन नहीं होता है।
अब एक दो बॉल लीजिए, इसके अंदर में एक रोप डालिए, रोप और स्ट्रिंग। उसके बाद आप जो बॉल्स है उसको प्रेस कीजिए, स्ट्रिंग का कोई चेंज नहीं होगा, वो प्लेन में ही रहेगा, उसके अंदर ही रहेगा। तो क्या होता है, ड्यू टू द रिपल्शन ऑफ द टू नाइट्रो ग्रुप्स देयर इज नो इफेक्ट ऑन द cyanide group because it is a linear group, that's why it stays in the plane, and due to the minus r effect, इसका minus r effect जो है यहाँ पे रहेगा, क्योंकि प्लेन के अंदर रहेगा, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाएगा, H+ रिलीज विल बी मोर फेवरेबल। ये हो गया हमारा SIR के लिए, ये यहाँ पे एक्सेप्शन हो गया, ठीक है। सो यहाँ पे आपको ये मान याद रखना है कि due to the repulsion of the two nitro groups in the compound number A, the nitro group that is present in the middle goes out of the plane, so there is no minus R, only minus I। इसके अंदर रेजोनेंस नहीं होगा, इसके लिए ए इलेक्ट्रॉन को जो है वो ज्यादा नहीं खींचेगा, ठीक है। अब बी में जाएंगे तो साइनाइड का जो ग्रुप है वो आपको यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच के देगा, क्योंकि इसको प्लेन में रहेगा, ये इसका माइनस आई भी है, माइनस आर भी है, इसीलिए साइनाइड वीक ग्रुप होने के बाद भी बी नंबर जो है वो ज्यादा एसिडिक है, ठीक है। ओके, और एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं हम लोग, उसके बाद आप लोग घर में बैठ के कुछ करेंगे, तो मैं कोई प्रॉब्लम होगा तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर दूंगा। आप लोग को कोई पूछा है यहाँ पे कि इज दिस एसिडिक, इज दिस एसिडिक, you will say yes. How? You can see the hydrogen here, if it is lost, this will get a negative charge, if it is lost, this will get a negative charge, so there is a minus charge. Now if you see this minus charge, you will see the compound follows the aromaticity rule, 4n plus 2 is equal to 6, so n is equals to 1. Now after the release of the hydrogen, you should definitely consider this fact, these are the questions of previous year. After the release, सो एसिडिक, सो ये बात भी आपको कंसिडर करना है। अब एक काम कीजिए, आप लोग एक काम कीजिए, हिमांशु पांडे और MS चौहान का क्वेश्चन कीजिए, और उसके बाद और कोई भी बुक्स होगा, कोई भी मटेरियल होगा, आप क्वेश्चन कीजिए, हम लोग इसको देखेंगे बाद में, ठीक है। सो मैं यहाँ पे वीडियो को यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ। हमारा जो आज का पार्ट है वो एसिडिक स्ट्रेंथ का पार्ट हम लोगों ने पढ़ा, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा है, और जो हमारा आइसोमरिज्म का वीडियो है वो हम लोग बाद में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आई विल नॉट बी एबल टू डू द क्लास टुडे। थैंक यू।